Hello, ma'am. Hello. Welcome again, ma'am. Okay. We can start now, ma'am. Can we? Yeah, sure. So, in this second lecture, again, this is on the gender and law. Yeah. So, in the first part, as I have discussed with you, the concepts of gender and the law as how it has been explained. Then I have discussed with you the intersection of gender and law and the international human rights regime or international laws which are there for the gender. And as also one of you have also brought that question regarding misconception about the gender, and I have discussed that with the perception which we are having in the society, because gender is always a social construct. And legally, if we talk about the gender, then it includes all the sexes, so which are the biological construct of the human being, and that the laws are available to everyone. Anyone, if is being discriminated, if there is inequality in terms of its respect, protection or preservation of the rights, तो वहां पर law जो है that is equal for everyone. However, considering some of the sexes which are not getting the equal rights, the laws have been made specifically for those genders which are belonging particularly to females and also to the third gender. It is because as it is a social construct, and in society it is conceived that the women are not being treated equally, and that's why there is a need for treating them equally, for protecting their rights. And that's why you see at national level, in our domestic laws, many of the rights have been given to the women. So coming to the second type of the rights, besides that international human rights regime, what we found at national level is the rights that are known as the constitutional rights, fundamental rights. So we know that the constitution is the supreme law of the land. जो कहते हैं हमारे भारत का जो संविधान है वो सर्वोच्च कानून है. And that constitution confers some of the rights which are provided in various provisions of the Constitution of India. And these rights are available to all persons and citizens. जो भी राइट्स दिए गए हैं, पार्टिकुलरली पार्ट थर्ड जब हम देखते हैं जो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, तो उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है दैट दिस इज अ राइट विच इज अवेलेबल टू मेल, दिस इज अ राइट विच इज अवेलेबल टू अ फीमेल, बट the rights are either made available to a person or to the citizens. And these persons and citizens, we know that a woman is either a person or a citizen, so she is also having all these rights equally. Then further, besides those rights which are equally available to all the persons and citizens, there are some specific rights also which are provided in our constitution to the women only. विमेन के लिए भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक कानून बने हुए हैं हमारे संविधान के अंतर्गत, कुछ ऐसे राइट्स हैं which are relating to the principles of the gender equality, and that is something which is enshrined in the Constitution preamble, fundamental rights, fundamental duties, directive principles. ये सारे पार्ट्स हैं हमारे संविधान के, चाहे वो हमारे मौलिक कर्तव्य हो, मूल अधिकार हो, या फिर जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनकी बात करते हो. So everywhere you'll find that in order to give the gender equality, the principles are the part of the Indian Constitution as well. Then this Constitution is not only granting the equality to women, but it is also empowering the state to adopt the measures for positive discrimination in favor of the women. केवल इक्वालिटी की बात नहीं हो रही है कि उनको इक्वल राइट मिलेंगे, बिकॉज दैट इज अ राइट विच इज अवेलेबल इन जनरल टू ऑल द पर्संस, टू ऑल द सिटीजन्स. बट स्पेसिफिक राइट्स की भी बात हो रही है संविधान में, जहां पर कुछ स्पेशल
प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं, कुछ विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं फॉर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ women. So when we go through the provisions of the constitution, we find that the rights granted to the women are at par with the rights of the men. In some cases, women enjoy the benefits of certain special provisions also, and that special provision is given under Article 15, Clause 3. आर्टिकल 14 जो है हमारे संविधान का, दैट स्पीक्स अबाउट द राइट टू इक्वालिटी, वो समानता के अधिकार की बात करता है. तो एक जनरल आर्टिकल है जो समानता की बात करता है, जिसमें हर किसी को समान अधिकार प्राप्त हैं. दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्संस, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. की भारत का जो टेरिटरी है उसके अंदर कोई भी राज्य जो है वो महिला किसी भी पर्सन के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा. किस मामले में? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, की कानून के समक्ष समता का अधिकार अवेलेबल है. लेकिन ये जो एक जनरल आर्टिकल है, आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, इसी के आगे आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 3 है वो बात करता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की. तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो 15(3) है, दिस वाज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्स्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. ओरिजिनल फॉर्म में जब इसको 1950 में पूरी तरीके से लागू किया गया, ये 15(3) उसका पार्ट था. जबकि आज की डेट में अगर आप देखें तो यू मे बी अवेयर बिकॉज यू आर ऑल इन द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, कि जब अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें भी या बच्चों की एडमिशन होते हैं उसमें भी देखा जाता है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे कुछ रिजर्वेशन पॉलिसीज बने हैं कि एससीज को रिजर्वेशन, एसटीज को रिजर्वेशन, ओबीसीज को रिजर्वेशन. इस तरीके से पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, दैट द पर्सन्स हु वर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, who were being exploited, who were being oppressed, so to bring them in the mainstream in the society, to include them in the mainstream in the society, these positive discriminations provisions have been made. तो वो हमारा संविधान लागू होने के बाद आए आर्टिकल 15, 4, 5, 6, ये सब इन्हीं से रिलेटेड है. और अभी EWS की बात करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 15(6), वो भी एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की का ही एक्सटेंशन है. तो ये सब हमारे संविधान 1950 के बाद आए. लेकिन जो 15(3) की मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये 15(3) हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट था. और इसमें जो है एम्फेसिस किया गया था किस पे? टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन. बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए राज्य विशेष प्रावधान बना सकता है, और ये अपने आप में कोई इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो. ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है. सो I'll be putting some emphasis on the constitutional provisions which speaks about the equality, whether it is the preamble to the Constitution of India, it is the fundamental rights, it's the directive principles, fundamental duties. Certain judicial pronouncements are also there. So more specifically, we know that all the fundamental rights are available to all the women also, which are available to the male or the men. But the special provision, as I told you, is Article 15(3), and here जो स्टेट है उसको एम्पावर किया गया है टू मेक सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस फॉर द वुमेन, और टू से सम स्पेशल प्रोविजन टू मेक सम अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ द वुमेन. देन जहां तक इक्वालिटी की बात हम करें तो इक्वालिटी के लिए भी प्रावधान है. आर्टिकल 14 मैंने आपको बताया. आर्टिकल 15 है which says that the state shall not discriminate against any citizen of the India on the ground of sex. तो जैसा पहले मैंने कहा था ना कि सेक्स ही हर जगह, अगर लीगल डॉक्यूमेंट को आप उठाकर देखेंगे तो वहां पर सेक्स की बात कही गई है, वहां पे जेंडर की बात नहीं कही गई. तो सेक्स के आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. लेकिन 15(1) के बाद अगर तुरंत हम देखते हैं, जब 15(3) में जब बात की गई है विमेन के लिए स्पेशल प्रोविजन, चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन, so that was related to the existing condition of the nation at the time of the enforcement of the constitution. जब संविधान को हम लागू कर रहे थे, जब संविधान बनाया जा रहा था, उस समय महिलाओं के प्रति जो व्यवहार था, उनमें जो डिस्क्रिमिनेशन था, उसको कैसे दूर किया जाए, उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कराया जाए सारी चीजों में, उसके लिए एक स्पेशल
प्रोविजन बना के केवल वुमेन और बच्चों के लिए प्रावधान बनाने की बात कही गई। फिर आर्टिकल 16 है जो हमारा संविधान का 16, जो वो भी बात करता है, एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। एंड there also you will find that the provision is that the state shall not discriminate on the ground of sex। कि एम्प्लॉयमेंट कोई भी है उसमें सेक्स के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। दैट नो पर्सन शैल बी एलिजिबल, नो सिटीजन शैल बी एलिजिबल। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जब 16(2) ये कह रहा है कि इसके आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, then how come some of the women have been excluded from some of the services as well? ये एक क्वेश्चन उठ सकता है। So the provision is that the article 16(2) जो बात करता है no citizen shall be discriminated against or be ineligible for any employment. So if there is any condition for the employment, if there are certain qualifications for that particular employment, then it is a general section and then the specific section will be there। तो ये specific section भी हो सकता है। देन ट्रैफिकिंग की हम बात करते हैं, फोर्स लेबर की बात करते हैं, उसको प्रोहिबिट किया गया। वेमेन के लिए और मैन के लिए इक्वल राइट्स और इक्वल मींस ऑफ लिवलीहुड हो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दिया जाए, इस तरीके के कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को संविधान में में हिस्सा दिया गया। Then the directive principles was related that to ensure the health and strength of the women also। Just a minute, I have not opened the pen as such। तो अगर हम ये देखते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको बहुत सारे संविधान में भी अधिकार दिए गए और उनको स्टेट के ऊपर भी एक तरीके से ऑब्लिगेशन दिया गया कि वो किस तरीके से महिलाओं के स्वास्थ्य को लेके, उनकी स्ट्रेंथ को लेके किस तरीके से इंश्योर करे वुमेन वर्कर्स को कि वो इकोनॉमिक नेसेसिटी की वजह से कुछ ऐसे काम ना करने लगे जो कि उनकी स्ट्रेंथ और उनकी हेल्थ पर एक बुरा प्रभाव डाले। तो इस तरीके के भी कानून बनाए गए। जो भी वर्किंग कंडीशंस हो वो जस्ट हो, ह्यूमेन हो, और मैटरनिटी रिलीफ उनको देने के लिए प्रावधान किए जाएं। और साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उसमें भी इस तरीके की हर सिटीजन के ऊपर एक ड्यूटी रखी गई कि वो किसी भी तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको रिनाउंस करे, उनको त्याग दे, जिससे कि विमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट में हो या उनके अगेंस्ट में वो डेरोगेटरी हो, उनको भी त्यागने की बात कही गई। फिर साथ ही साथ धीरे धीरे कि कैसे उनको पार्टिसिपेट कराया जाए। जो मैंने आपको 1989 का यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर था जहां पर राइट्स दिए गए थे चिल्ड्रन के लिए, राइट्स जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको सर्वाइवल का, पार्टिसिपेशन, डेवलपमेंट का, तो उसके आधार पर अगर हम देखते हैं तो हमारे संविधान में ही फिर कुछ अमेंडमेंट करने के बाद कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी बनाए गए खास करके वुमेन के पार्टिसिपेशन के लिए। जहाँ पे पंचायत में जो पंचायत राज सिस्टम है उसमें जो 1/3 of the total seats of are to be filled by direct election, that is to be reserved for the women। अभी लोकसभा में इस तरीके की चीजें नहीं आ पाई हैं। हमारे पार्लियामेंट में तो ये मुद्दा केवल डिस्कशन तक चल रहा है, उसमें अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन पंचायत लेवल पे 1/3 सीट्स का रिजर्वेशन है। साथ ही साथ अगर हम कहीं देखें तो जो चेयरमैन है 1/3 चेयरमैन, उन पे भी महिलाओं को कुछ रिजर्वेशन देने की बात कही गई है। तो म्यूनिसिपैलिटी में भी इस तरीके के प्रावधान किए गए हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनली वी सी देन वी फाइंड दैट the preamble speaks about the dignity of the human being and equality of the human being, justice towards the human being, कि वो citizens जो हैं उनको किस तरीके से ensure कराया जाए। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, उसमें राइट टू इक्वालिटी की बात कही गई है, हर किसी को समानता का अधिकार है। और उसके अतिरिक्त जो भी अधिकार हैं वो पर्सन्स को और सिटीजन्स को मिले हुए हैं। तो उसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ऐसी जरूरत नहीं है कि जो वुमेन है या वो अपने आप में पर्सन या सिटीजन की कैटेगरी में नहीं आती है। सो ऑल द राइट्स आर अवेलेबल टू एवरी पर्सन और सिटीजन।
स्पेशल प्रोविजंस भी बनाने की बात कही गई है कि बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान बनाए जा सकते हैं। तो उसको अगर हम ध्यान में रखते हुए देखें तो जब मैं स्टैट्यूटरी लॉ की आपसे बात करूं तो उसमें बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो 15(3) के अंतर्गत बनाए गए हैं, महिलाओं के को इक्वलिटी देने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और साथ ही साथ पॉलिटिकल स्फेयर में भी म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत लेवल पे जो हमारा 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, उसमें सेंटर में नहीं, स्टेट में नहीं, लेकिन जो पंचायत राज सिस्टम है, जो म्यूनिसिपैलिटी है, वहां पर 1/3 सीट्स चेयरमैन की और 1/3 सीट्स इन दी एंटायर जो नंबर है, टोटल नंबर है, उसमें इलेक्शन के थ्रू रिजर्व की गई है महिलाओं के लिए। सो दीज सीट्स आर डेजिग्नेटेड एज दी women's सीट और द फीमेल सीट। तो वहां पर उनको ये अधिकार दिया गया है, उनको अधिकार दिया गया है कि वो अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो ये ड्यूटी हर सिटीजन के ऊपर ये लागू की गई है कि दैट द सिटीजन हैज टू रेनाउंस द प्रैक्टिसेस व्हिच आर डेरोगेटरी अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन। तो डिग्निटी को एक बार फिर एंश्योर कराने की बात कही गई है मूल कर्तव्यों में, फंडामेंटल ड्यूटीज में। और स्टेट को भी अंडर ऑब्लिगेशन रखा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि वो इक्वल पे की बात करें, वो ऐसी वर्किंग कंडीशंस को अच्छा बनाए, वो मैटरनिटी रिलीफ के लिए लेके कानून बनाए, वो इकोनॉमिक नेसेसिटी के आधार पर, या कोई फाइनेंशियल ऐसा बर्डन है जिसकी वजह से महिलाएं कुछ ऐसा काम कर रही है जो उन्हें नहीं करना चाहिए, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए कानून बनाया जाए। सो at constitution we find that the specific provisions have been made for equal rights of the women, their political participation, their social necessity, their economic necessity, as well as the dignity of the women, which may protect their equality rights. In सब की बात कही गई है। Then the third type of the rights which are there, which ensure the equality of the women, or which ensure that the violence may not be committed against the women. There are many laws, statutory laws. Statute जो है एक्ट की बात करते हैं, जब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है उनको हम एक्ट्स कहते हैं, एंड दीज आर नोन एज द लीगल और द स्टैट्यूटरी राइट्स। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं, एक ह्यूमन राइट्स हैं जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट से आ रहे हैं, एक लीगल या स्टैट्यूटरी राइट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो यहाँ पे महिलाओं के लिए जो वायलेंस किया जाता है, घरेलू हिंसा है, उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट उसको किया जाए, तो उससे संबंधित है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो इस तरीके के जो एक्ट के द्वारा जो अधिकार आ रहे हैं वो सब कहाँ से आ रहे हैं, उनको हम लीगल या स्टैट्यूटरी राइट्स के नाम पर जानते हैं। So we find that in this statutory or legal rights there are many laws and specific acts also, special laws also, which have been made for the equality rights of the women, which are made to protect the women from any of the violence. और कुछ स्पेसिफिक लॉज होते हैं, कुछ जनरल लॉज होते हैं। जैसे मैंने डाउरी प्रोहिबिशन कहा, ये जनरल, ये एक स्पेसिफिक लॉ है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये एक स्पेसिफिक लॉ है, लेकिन कुछ जनरल लॉ है जिसमें केवल महिलाओं की ही बात नहीं कही गई है, बल्कि उसमें कुछ प्रावधान, सम ऑफ द प्रोविजंस आर रिलेटेड टू द विमेन प्रोटेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं इंडियन पिनल कोड, जो भारतीय दंड विधान है आईपीसी, उसमें बहुत सारे प्रावधान ऐसे बने हुए हैं जो महिलाओं के हैं। ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू सी मैरिज रिलेटेड ऑफेंसेस। तो ये क्या है, उस पूरे कानून के अंदर कुछ पार्ट ऐसे हैं जो वुमेन से रिलेटेड हैं। इसी तरीके से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, एविडेंस एक्ट है, तो ये क्या है, जनरल लॉ है, लेकिन उसमें महिलाओं की उसमें कहीं ना कहीं बात की गई है और उनसे रिलेटेड कुछ कानून बनाए गए हैं। So these are the laws which are also active when it comes to the women and their protection. So the question is when we have these general laws, IPC अगर हमारे पास है, Indian Penal Code है, then why we need the special laws and provisions for the women? तो हमें एक special law की, specific law की जरूरत क्यों पड़ी, और why there are specific laws and rights for the women? And
we see that when she is a human being, जैसा मैं आपको बता रही हूँ, when she is a human being like other male counterpart, then why we need a special law? So to answer this question, we have to look back. हमें कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे देखना पड़ेगा. उसके लिए जो हम परसेप्शन की बात कर रहे हैं, और उस परसेप्शन में अगर हम देखें, then the social and cultural norms that are influenced by the caste, which are influenced by the class, which are influenced by the religion as such. क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं दिखाई देता है, लॉज ऑफ मनु की अगर हम बात करें, दैट it simply says that her father protects her in the childhood, her husband protects her in the youth, and her son protects her in the old age. A woman is never fit for independence. तो क्या है कि अगर कोई महिला है, कोई बच्ची पैदा हुई है, कोई लड़की है, तो उसकी केयर करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चाइल्डहुड के दौरान फादर की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, यूथ के दौरान उसके हस्बैंड की दी गई है, और ओल्ड एज में उसके बेटे की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है. वुमेन इज नेवर फिट फॉर इंडिपेंडेंस. वो फिट है ही नहीं इंडिपेंडेंस के लिए. सो दिस इज यू विल फाइंड इन द लॉज ऑफ मनु. Similarly, considering that it is the highest duty of all the caste, जो caste के नाम पर भी that even the weak husband must strive to guard their wives. कि husband जो है वो खुद भी अगर किसी भी तरीके से I mean ठीक नहीं है, वीक है, कोई बीमारी है, कुछ है, वो अपने आप की रक्षा नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी अपनी वाइफ को गार्ड करने का काम किसका है? उसकी वाइफ को, वो हस्बैंड का ही है. So these were some of the laws which were prevalent, and on the basis of which it was considered that the women were not given the independence, they were not being fit for freeness, they were not given any freedom. कभी वो स्वतंत्रताएं उनको मिली ही नहीं, जिसके बेसिस पे वो अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी की तरीके से, इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरीके से वो अपने आप को सोसाइटी में ला सकती हूँ. इस तरीके की चीजें, ये सब कथन थे, ये सब लॉज थे, ये सब चीजें थी, वो चलती रहती थी. एंड यू सी दैट, एज आई टोल्ड यू ऑल्सो, देयर इज डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम वॉर्म टू टॉम. कहते हैं ना, वॉर्म से लेके और टॉम तक जो है, किसी ना किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन वुमेन के साथ होता रहता है थ्रू आउट लाइफ. बिकॉज वुमेन फेसेस वायलेंस थ्रू आउट हर लाइफ, एंड देयर इज नो एंड इन बिटवीन. पैदा होने से पहले, पैदा होने के बाद, मैरिज के समय, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, एजुकेशन के लिए नहीं भेजा जा रहा है. स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट देखिए, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है. देयर आर मेनी रीजन. प्रॉपर फूड नहीं मिलता है, उनको फिजिकली, सेक्सुअली, इमोशनली अब्यूज किया जाता है. अब्यूज में भी बाय पेरेंट्स. आई हैव डन वन स्टडी, इट वाज वेरी ओल्ड स्टडी, बहुत पहले की थी, लेकिन स्थिति आज भी चेंज नहीं हुई है. उसमें मैंने जब कुछ सुप्रीम कोर्ट और के केसेस मैंने स्टडी किए थे, दैट वाज द डिसीजंस ऑन द रेप केसेस. और उन रेप केसेस में आपको विश्वास नहीं होगा, वो क्रिमिनल लॉ जर्नल में हमारा छपा था 2002 में. उसमें एक स्टडी में मैंने ये पाया कि जितने भी मैक्सिमम केसेस रेप के हो रहे हैं, उनकी जो एज ग्रुप है बच्चों की, वो 1.5 महीना, 1 महीने से लेके 3 साल और 4 साल के बच्चों के साथ. और जो रेपिस्ट हैं वो कोई इधर उधर से नहीं आ रहे हैं, वो नियर रिलेटिव्स ही हैं या नेबर्स जो आसपास रहते हैं, उन्हीं के द्वारा ज्यादातर केसेस में इस तरीके के रेप किए जा रहे हैं. सो फिजिकल एंड सेक्सुअल इमोशनल वायलेंसेस अगेंस्ट द वुमेन बाय द पेरेंट्स, बाय द रिलेटिव्स, दैट यू विल फाइंड ड्यूरिंग द चाइल्डहुड ऑफ द गर्ल चाइल्ड. और एडोलसेंस में आ जाती हैं, टीन एज, तो उस समय भी देख लीजिए, अगेन शी फेसेस द सेक्सुअल हरासमेंट, ईव टीजिंग, रेप, स्टॉकिंग, वायरिज्म, बहुत सारे हैं. ट्रैफिकिंग हो जाती है, प्रोस्टिट्यूशन पे जाते हैं, नई नई चीजों का, नई नई तरीके के क्राइम्स एंड ऑफेंसेस इजाद हो गए हैं, एसिड अटैक हो जा रहे हैं. तो ये क्या है? ये भी एक एज ग्रुप है कि जहां पर ये सारी तरीके के क्राइम्स और वायलेंसेस, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन होते हैं. उसके बाद किसी तरीके से यहाँ से बच के अगर लड़की निकल भी आए, देन यू विल फाइंड दैट मैरिज, ड्यूरिंग मैरिज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वायलेंसेस व्हिच हैव बीन कमिटेड अगेंस्ट द वुमेन ड्यूरिंग एडल्ट एज. डाउरी की डिमांड होगी, नहीं मिली तो जला दो, नहीं मिली तो मार दो. डोमेस्टिक वायलेंस इन मैरिजेस होंगे, फैमिली वायलेंस होंगे, अब्यूज होंगे, ब्राइड बर्निंग होगी. So these are all offenses which have been committed against the women throughout the life cycle, and you will find that the list would be endless.
एंड जो रेप केसेस में है खास करके, आप देखिए मैंने कहा 1 महीने से 3 साल तक के मैक्सिमम केसेस हैं, बट इट इज नॉट लेफ्ट दैट अ वुमेन ऑफ 70 ईयर्स इवन कैन बी रेप। मध्य प्रदेश में कहीं एक बहुत पहले एक न्यूज़पेपर में निकला था कि रिक्शा वाला था, उसमें एक 70 साल की बूढ़ी मंदिर से घर आ रही थी, रेप किया। So these are the things that you cannot find that what may be the age group of the opposite sex, that if the violence is committed against, so how to protect them from these type of the violences and how to treat them with the equality. Laws are there. So general laws are there, but it requires that there must be some specific legal and statutory provisions for the women. So that these abuses may be stopped, controlled, the harassment, the violence, the inequality, and there are many laws which have been enacted by the parliament. For example, if you see Commission of Sati Prevention Act, पहले तो ये भी होता था, 1987 में दोबारा से लॉ बना, पहले भी बना हुआ था जब रूपल देओल का एक जो सती कमीशन हुआ था कि पति मर गया है तो उसकी जो चिता है उस पर पत्नी को बैठा दिया जाए। तो ये धीरे धीरे ये जो प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं हैं, समाप्त तो हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिखाई देता है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट स्पेसिफिक एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट स्पेसिफिक एक्ट है, और ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम वायलेंस, जो डोमेस्टिक वायलेंस, ये भी एक स्पेसिफिक एक्ट बनाया गया। इमोरल ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, स्पेसिफिक एक्ट बना हुआ है। डाउरी प्रोहिबिशन को लेके अलग से एक्ट बनाया गया कि उसको कैसे डाउरी को रोका जाए। देन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, महिलाओं को गलत तरीके से रिप्रेजेंट ना किया गया, इंडिसेंट वे में रिप्रेजेंट ना किया जाए, उसके लिए भी एक एक्ट बनाया गया। अगर किसी के साथ इस तरीके की चीजें होती हैं तो उसके लिए कानून बने हुए हैं। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट बनाया गया कि महिलाएं जो वर्किंग वुमेन हैं उनके साथ किसी भी तरीके के सेक्सुअल हरासमेंट्स ना हो, वो फ्रीली अपना काम कर सके जहां वो जा रही हैं। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज है, और साथ ही साथ फिर कुछ पर्सनल लॉज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी कुछ कुछ अधिकार दिए गए, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो जहां पर उनको डिवोर्स के लिए कुछ ग्राउंड्स भी दिए गए। हिंदू सक्सेशन एक्ट बनाया गया, उसमें सक्सेशन एक्ट में जो वुमेन्स हैं उनको अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी जो इनहेरिट की है इक्वली विद मैन, उसमें उनको राइट्स दिए गए। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक बनाया गया जो वुमेन से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई कंप्लेंट्स होती हैं उस पर वो अपना रिकमेंडेशंस देते हैं। वुमेन इश्यूज को लेके दे डू मैनी ऑफ द वर्क्स, उनके रिकमेंडेशंस, उनके रिपोर्ट्स आते हैं। क्रिमिनल लॉ जो मैंने बात की, इंडियन पीनल कोड 1860 का बना हुआ है, 1860 का बना हुआ है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जो ऑफेंसेस हैं, जो क्राइम्स हैं, उनका शेप बदलता जाता है, तो उसी को देखते हुए अमेंडमेंट भी किए जाते हैं, और उसी अमेंडमेंट के आधार पर सेक्सुअल असॉल्ट को, वायरिज्म को, स्टॉकिंग को पीछा कर रहे हैं, या महिला अगर रोबिंग कर रही है, डिसरोबिंग, तो वहां पर वो झांक रहे हैं, इस तरीके की उनकी मॉडेस्टी को आउटरीच कर रहे हैं। तो इस तरीके की कुछ नई चीजें थी, या फिर एसिड अटैक की बात कही, तो ये सारी इनको अमेंडमेंट के द्वारा भी इसको पार्ट बना दिया गया है इंडियन पिनल कोड का। सो ऑल दीज आर देयर। Then specifically if we find that article section 498A बहुत important है वो इंडियन पिनल कोड का, जहां पर जो रिलेटिव्स हैं, हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स हैं, अगर किसी वुमेन के ऊपर कोई डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं तो उसमें उनके ऊपर इम्प्रिजनमेंट है, फाइन है, उनको अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये सारी जो हैं लॉ, कुछ स्पेसिफिक लॉ भी हैं, कुछ जनरल लॉ भी हैं। साथ ही साथ अगर हम वुमेन की बात करें तो अगर कोई वुमेन कोई अपराध करती है, ये नहीं है कि सारे अपराध वुमेन के ही लिए हो रहे हैं, उसी के ऊपर किए जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई वुमेन भी अपराध करती है, कोई वायलेंस कमिट करती है, तो ऐसी स्थिति में जो उसकी अरेस्ट है या सर्च है, दैट इज टू बी स्ट्रिक्टली विद रिगार्ड टू द डिसेंसी बाय वुमेन पुलिस ऑफिसर, एंड उसका जो अरेस्ट किया जाएगा वो वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही किया जाएगा। उसका अगर मेडिकल एग्जामिनेशन होना है तो वो वुमेन मेडिकल ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा, या उसके सुपरविजन में जो वुमेन मेडिकल ऑफिसर है उसके सुपरविजन में किया जाएगा। खास करके रेप केसेस में अगर कोई एफआईआर वगैरह लिखानी है तो वो भी वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा, क्योंकि महिला थाना बहुत से इसीलिए खोले गए हैं
देन वी फाइंड दैट कि अगर किसी महिला को अरेस्ट करना है तो प्रावधान बनाया गया है कि किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले, मतलब रात के समय में किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई अर्जेंसी है, ये लग रहा है कि वो एक्सपॉन्ड कर जाएगी, फरार हो जाएगी, भाग जाएगी, तो ऐसी स्थिति में स्पेशल परमिशन मजिस्ट्रेट से लेनी होगी, और तब वो भी तब जबकि महिला पुलिस ऑफिसर वहां पर हो, तो ऐसी स्थिति में अरेस्ट किया जाएगा। अदरवाइज बिफोर आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज a woman cannot be arrested. Then there are some specific acts which are related to their employment, which are related to their labor work, which are related to some other issues of the women, चाहे वो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, प्लांटेशन लेबर हो, बॉन्डेड लेबर हो, इस तरीके के कुछ एक्ट्स हैं जिसमें वुमेन को स्पेशल प्रावधान किए गए हैं। फिर कुछ जनरल नेचर के भी लॉ हैं, जैसे इंडियन सक्सेशन एक्ट, अभी मैंने कहा हिंदू सक्सेशन एक्ट है, तो इसी तरीके से एक इंडियन सक्सेशन एक्ट है, इंडियन डिवोर्स एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, तो उसमें भी प्रावधान किए गए हैं महिलाओं के लिए कुछ खास करके। फिर हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट है। सो I mean to say that there are many statutory legal rights which have been made available to the women to protect her rights against the violences, against the offenses, and also to bring equality लाने के लिए और उनको rights देने के लिए ऐसे बहुत सारे कानून बने हुए हैं महिलाओं के लिए, जिसपे हम देखते हैं कि महिलाएं जो हैं उनको इन विशेष प्रावधानों के अंतर्गत अगर कोई वायलेशन हो रहा है, दे कैन डायरेक्टली गो टू दी कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये सारे कानून जो बने हुए हैं, इसके आधार पर एक स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल प्रोविजन, जिसको आर्टिकल 15(3) में हमारे संविधान में कहा गया है, उसके आधार पर भी बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए। Then if we find that the judicial support, what was the judicial support to bring the equality लाने के लिए जो हमारी अदालतें हैं उनका क्या सपोर्ट रहा, उन्होंने क्या किया यहाँ पर, या उनकी कहना चाहिए कि क्या एक कंट्रीब्यूशन रहा है for upliftment of the women right to bring the women equality or gender equality through the case law, then we'll find that विशाखा जजमेंट, बहुत से आप लोगों ने सुना होगा कि विशाखा का एक जजमेंट 1997 में आया, और इसमें जो एक एनजीओ था, विशाखा नाम से एक एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था, वो अपना बच्चों की चाइल्ड मैरिज हो रही थी, राजस्थान से रिलेटेड है, उनको रोकने के लिए वो एनजीओ काम कर रहा था, और पब्लिकली जो वुमेन थी जो एनजीओ की, उसको उसके ऊपर अत्याचार किया गया, उसके साथ मोलेस्टेशन किया गया, सारी चीजें। और फिर इसको लेकर जब केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ गाइडलाइंस इशू किए, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट के लिए कोई प्रिवेंशन के लिए कोई लॉ नहीं बना हुआ था तब तक 1997 तक। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि अगर जब तक लॉ नहीं बनता है तब तक हमारी दी हुई गाइडलाइंस हैं, दैट विल बी द लॉ, वो अपने आप में लॉ का काम करेंगी। तो इट इज ऑल्सो नोन एज द जुडिशियल लेजिस्लेशन, अगर हम लॉ की लैंग्वेज में बात करते हैं तो वो जुडिशियल लेजिस्लेशन का नाम दिया गया है इस केस के जो डायरेक्शंस आए थे उसमें। तो हर इंस्टीट्यूशन में जहाँ 50 या उससे ज्यादा लोग एम्प्लॉय हैं तो उसमें एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होगी, उस कमेटी की चेयरपर्सन हमेशा एक महिला होगी, 50% से ज्यादा महिलाएं ही उस कमेटी में होंगी, और वो उनको अपनी सुनवाई करनी है सेक्सुअल हरासमेंट से लेके, और विद इन लिमिटेड टाइम, उस पर टाइम बाउंड दे दिया था कि अगर कोई ऐसा केस होता है तो वो अपना रिकमेंडेशन दे सकती हैं। जो एम्प्लॉयर है अगर वो ऐसी कमेटी स्थापित नहीं करते हैं तो उनके ऊपर एक पेनाल्टी भी 50,000 रुपए की लगाई जाएगी। कुछ इस तरीके की ये गाइडलाइंस दी गई थी। तो 97 से लेके 2013 तक ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली सभी इंस्टीट्यूशन में आईसीसी को एस्टैब्लिश किया गया। उसके बाद जब 2013 में सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, तो अब एक्ट में भी यही गाइडलाइंस को ऑलमोस्ट इनकॉर्पोरेट किया गया है, उसमें भी इंटरनल कमेटी की बात कही गई है। तो विशाखा जो था वो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की बात करता था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात नहीं करता था कि बाकी कहीं अगर इस तरीके का हरासमेंट हो रहा है तो उसके लिए क्या सुविधाएं होंगी। तो जब ये एक्ट आया 2013 में तो उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की भी बात कही गई
तो उसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है एक कमेटी बनाई जाएगी, जहाँ पर डीएम के देख रेख में कमेटी बनाई जाएगी, और उसमें इस तरीके से अगर किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, तो उसको अपनी कंप्लेंट कर सकती हैं उसमें। तो ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर्स के लिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बिल्डिंग में ठेकेदार हैं या और भी हैं जो महिलाएं काम कर रही हैं, उनके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो दे कैन कंप्लेंट देयर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इक्वालिटी की, तो एक एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा का एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट का 1978 का, जहां पर जो महिलाएं एयर हॉस्टेस थी एयर इंडिया में और एयरलाइंस में, उनके साथ क्या था कि जब वो जॉब में आएंगी, उसके जॉब में आने के बाद वो पहले तो वो शादी नहीं करेंगी, अगर शादी हो जाती है 4 साल के बाद, जो भी एक पीरियड दिया था, उसके बाद तो जब पहला बच्चा होगा उसके बाद उनको नौकरी से हटा दिया जाए। एंड दिस कंडीशन वाज नॉट एप्लीकेबल टू टू ए मेल हॉस्टेस, एयर हॉस्टेस। तो जब ये जो रूल्स बनाए गए थे एयर इंडिया के द्वारा, इसको चैलेंज किया गया दैट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स यू आर मेकिंग दिस प्रोविजन, यू आर एक्सक्लूडिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग द वुमेन टू कंटिन्यू विद द सर्विसेज, सो दिस इज वायलेटिव ऑफ द राइट टू इक्वालिटी। और ये जो एयर इंडिया के रूल्स थे इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। तो एक इक्वालिटी की जो एक डेफिनेशन थी वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एयर इंडिया नरगेश मिर्जा में देना शुरू की गई। और जस्टिस कृष्णा अय्यर उसमें कोर्ट में थे, जज सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने जजमेंट में कहा दैट यू आर मेकिंग रूल्स अगेंस्ट द वेरी सैक्रोसेंट इंस्टीट्यूशन दैट इज मदरहुड। कि मदरहुड के लिए लोग अब देख रहे हैं एआरटी आ रहा है, सरगेसी आ रहा है, मनु का लॉ कह रहा है कि बच्चा होगा, लड़का होगा तो वही सारे क्रियाक्रम और सारी चीजें जो राइट्स हैं उनको सबको करेगा। और आप ऐसा कानून बना रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि अगर बच्चा पैदा होता है, फर्स्ट प्रेग्नेंट होती है एयर होस्टेस, तो उसके बाद उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सो दिस इज समथिंग विच इज अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मदरहुड, दिस इज टोटली अनरीजनेबल एंड वायलेटिव एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ऐसा रूल नहीं बनाया जा सकता है। देन रिसेंटली आप देखें विनीता शर्मा, राकेश शर्मा का केस आया, जहां पर लड़की जिसकी शादी हो गई है या जो लड़की विडो है, अपने फादर की प्रॉपर्टी में उसको कोई हिस्सा नहीं मिलता था, तो अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि ये इक्वालिटी का वायलेशन है एंड दे विल हैव द सेम राइट। सिमिलरली कैप्टन बबीता पूनिया का केस, जो मैंने कहा आर्मी में परमानेंट कमीशन नहीं होता था वुमेन का, तो अब आर्मी में उनका परमानेंट कमीशन होगा। पहले शॉर्ट टर्म के लिए आते थे और जो मेल थे वो फुल टर्म के लिए भी यहाँ पर आते थे, लेकिन फीमेल को नहीं रखा जाता था। सो नाउ दैट हैज ब्रॉट द इक्वालिटी ऑल्सो। बबीता पूनिया था, कैप्टन नताशा, सो देयर आर मैनी केसेस जहाँ पर इस तरीके का हुआ। देन सबरीमाला के केस में जो 10 साल से 50 साल के बीच की जो फीमेल थी उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाएगा because of other religious and other physical reasons, but the court said that this is violative of the equality। एक ये भी एक जजमेंट आया जहाँ पे इक्वालिटी की बात में सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। गीता हरिहरन के नाम से एक केस आया जहाँ पर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जहाँ हिंदू गार्जियनशिप एंड माइनॉरिटी एक्ट है, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जो नेचुरल बॉर्न बच्चा है उसका गार्जियन कौन होगा, उसका गार्जियन मदर होगी या फादर हो। तो फादर को जो है वो गार्जियन माना जाता था, एंड आफ्टर फादर द मदर शेल बी द गार्जियन, दिस वाज द रूल। तो जब इस तरीके का रूल आया तो जो फादर था वो बाहर था कहीं और बहुत लंबे समय से आया नहीं था, लेकिन जो आफ्टर वर्ड है, आफ्टर फादर द मदर विल बी, तो आफ्टर को इंटरप्रेट किया जाता था कि आफ्टर मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर मदर विल बी देयर। तो इस केस में आरबीआई के अगेंस्ट में था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में था, कुछ प्रॉपर्टी को लेके, कुछ लोन को लेके प्रॉब्लम्स थी। तो जो माँ थी वो बच्चे का के गार्जियन ही नहीं नियुक्त हो पा रही थी और वो उसके फेवर में काम नहीं कर पा रही थी, फादर था ही नहीं। देन द कोर्ट हैज इंटरप्रेटेड दिस वर्ड आफ्टर, की जरूरी नहीं है कि मृत्यु के बाद अगर वो नहीं है, अवेलेबल नहीं है, सो इन दैट कंडीशन द मदर कैन बी दी गार्जियन। तो गीता हरिहरन का केस एक स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन रहा महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। सायरा बानो का केस आया ट्रिपल तलाक पर, कि जो ट्रिपल तलाक है वो अपने आप में सही नहीं है और उसमें महिलाओं के जो अधिकार हैं उनको दिया जाए, ऐसे डिवोर्स नहीं किया जा सकता है।
एक दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन का केस आया जहां पर जो वर्किंग जो मेड्स होती थी उनको छुट्टी नहीं दी जा रही है, उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे थे, तो उनका जो एक वर्किंग फोरम था एक एनजीओ, उन्होंने केस किया एंड देन द कोर्ट हैज डिसाइडेड कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में हैं या जो डेली वेजेस पर हैं या जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हैं उनको भी मैटरनिटी लीव दी जाएगी। देन गौरव जैन का केस था कि जो बच्चे हैं प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में जो महिलाएं लगी हुई हैं तो उनको भी इक्वालिटी का राइट दिया जाए। So we find that there are many more cases also, CB Muthamma case, then AK April Chopra. So a long list of the Supreme Court decision is there where we find that the Supreme Court has very significantly contributed for uplifting the rights of the women to give them the equality and at the same time to give them the equal status in the society कि society में उनको कैसे equal status मिल पाए उसको लेके काफी अच्छा एक कह सकते हैं contribution Supreme Court का रहा है। And we find that very recently a step forward has been taken towards the gender neutrality by the Supreme Court also in case of the Joseph Shine versus Union of India। एक एडल्ट्री की बात थी जहां पर आईपीसी का 497 था, तो वो जेंडर न्यूट्रल उसको बनाया गया, पहले वुमेन के अगेंस्ट में था, अभी जेंडर न्यूट्रल किया गया है इस केस में। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह भी कहा कि जो हस्बैंड है, दैट हस्बैंड इज नॉट द मास्टर ऑफ द वाइफ एंड women should be treated with equality along with the men। कि जो वाइफ है उसका कोई मास्टर नहीं है हस्बैंड, जैसे एक परसेप्शन है दैट लाइक लॉज ऑफ मनु, मैंने कहा था कि women is not fit to be free or independent because she has to be taken care of by the father, by the husband or by the son। So husband should not treat himself as the master of the wife, but they are equally partner, they should be treated with equality along with the men। And this ancient notion of men being perpetrator and the women being the victim is no longer is very good idea। ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, इसको हटाया जाए। तो ये जोसेफ श्राइन का केस था, 2018 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। यहाँ पर एक और एक स्टेप फॉरवर्ड कह सकते हैं जेंडर न्यूट्रलिटी को लेकर, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये डिसीजन दिया। बट स्टिल यू सी दैट जेंडर गैप that is in the labor force is rooted and it is giving the challenges for the working women across the world। कोई जरूरी नहीं है कि इंडिया ही में ये सब चल रहा है, ये across the world है। हम अंडर डेवलपिंग है या डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है, इसका कहीं कोई मतलब है ही नहीं इस जेंडर गैप को लेके लेबर फोर्स में। दिस इज प्रिवलेंट, दिस इज ऑमनी प्रेजेंट, इट इज एवरीवेयर, हर जगह ये सब चीजें मिल जाती हैं। एंड यू विल फाइंड दैट सिंपली लेबर में या एम्प्लॉयमेंट के मैटर को लेके खास करके डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस दैट इज ऑन द हायर साइड, which is related to the sexism at the workplace, which is related to the unequal wages, which is related to the unsafe work environment, that is related to the lack of creche facility also। कि बहुत सारे जो कानून है, फैक्ट्रीज एक्ट है या वर्किंग वुमेन के लिए जो भी कानून बनाए गए उसमें यह है कि अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन में, कोई कंपनी में, फैक्ट्री में वर्किंग वुमेन्स हैं तो उनके छोटे बच्चों के लिए रखने के लिए एक क्रेश भी होगा। तो बहुत सी जगह ऐसा देखा जाता है कि द क्रेश आर नॉट देयर, द फैसिलिटीज, वर्किंग फैसिलिटीज आर नॉट देयर, इवन टू सम एक्सटेंट द टॉयलेट्स आर नॉट देयर फॉर द वुमेन। तो इस तरीके की भी स्थितियां हैं, तो उससे कैसे निपटा जाए, उसको कैसे देखा जाए, क्योंकि लॉ तो बना हुआ है। तो ये गैप जो है इन लॉ एंड इन प्रैक्टिस, that we are always perceiving, and this is you find that in a society in which we are living there are different things and it's a patriarchal mindset may also be there, that plays very important role because when jobs are scarce, men should have more right to have a job than women। जरूरी कहाँ है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, जरूरी है कि महिलाएं भी नौकरी करें, सारा जॉब तो महिलाएं लेती चले जा रही है। तो ये भी एक परसेप्शन कहीं ना कहीं दिखाई देता है। वुमेन्स की जो मोबिलिटी है दैट इज लिंक्ड टू देयर ऑनर आल्सो।
वो रात में ड्यूटी कर रही है, सुबह ड्यूटी कर रही है, अच्छा वो घर से इस समय बाहर जा रही है. सो this is all which is a patriarchal mindset that also plays a great role. Traditional role of the women is that they have to stay at the home and they should not go out of the home. एंड जो मदर्स हैं वो बच्चों के लिए काम करें, बच्चों की देखभाल करें, उनको जरूरी नहीं है कि वो घर से बाहर जाके काम करें. सो ये कुछ इस तरीके की चीजें हैं जो चल रही हैं. कई बार की एक किसी सर्वे में मैंने पढ़ा था, वहां पे वो मतलब किसी ने एक मजदूर था, वो से लेबर ओनली, और वो उसने कहा कि क्या मैं इतना कमजोर हो गया हूँ कि मेरी औरत घर से काम करने के लिए बाहर निकलेगी. So this type of the mentality is there, and we find that even if the persons they don't have the sufficient means to live the good life, then again this male chauvinism sometimes comes in between. और इस तरीके की जो मैस्कुलिनिटी है जिसको हम कहते हैं जेंडर बेस्ड, यहाँ पर जो एक फैमिली सेटअप है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, this is the gap which is not being filled by the laws, because laws are there and this can be done only and only through the change in the mindset. कौन बदलेगा इसको, कैसे बदलेगा? This is a thing which we all need to think as a responsible citizen of the country, as a responsible citizen of the nation. We have to think. And now, as you must be hearing and reading through the newspapers and the news channels also, another topic which is coming up that is related to the gender and law. So we must have some point of views on the same-sex marriage also. So marriages between the two individuals of the same sex, what is to be there. So in India, we know that the same-sex marriages are not currently legal. हमारे यहाँ इसको अभी लीगल नहीं कहा जाता है, बिकॉज देयर मस्ट बी मैरिज बिटवीन टू पर्सन्स. तो पर्सन्स में ये माना जाता है दैट दे शुड बी ऑफ द अपोजिट सेक्स. बट whether we are going to legalize and to recognize these type of the marriages or not, there are different type of the arguments also, because जैसा मैंने कहा कि LGBTs को उनको rights दे दिए गए. So one argument is that if we legalize the same-sex marriage, that will provide legal recognition and protection to the LGBT couples. And it is also to promote the greater social acceptance. अगर उनको मैरिज अलाउ कर दी जाती है तो उनकी सोशल एक्सेप्टेंस भी हो जाएगी, एंड दिस विल रिड्यूस द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑल्सो. तो LGBT जो जेंडर है उसको लेकर ये बात की जा रही है कि जब उनको राइट्स दे दिए गए हैं, देन दे शुड बी अलाउड टू गेट द सेम सेक्स मैरिजेस ऑल्सो. But there are other types of the arguments also which are related to our old traditions, our religious factors, like marriage is a sacred institution. एक बहुत पवित्र रिश्ता है ये अपने आप में, which is defined as the union between a man and woman. So if we allow to legalize the same-sex marriage, then this will change the definition of the marriage to include same-sex couples. कैसे हो सकती है? It can be a union, but it cannot be a marriage. तो marriage की definition बदलनी पड़ जाएगी. And at the same time, it will also weaken the traditional family values. It will destabilize the marriage values. It will destabilize the institution of marriages, because the procreation of the children, that is considered to be one of the fundamental purpose of the marriage. And this fundamental purpose cannot be satisfied by the same-sex couples. It cannot be done by them. So in that case, this cannot be legalized. Same-sex marriage should not be legalized. And then children also require both the parents, mother and father, for their well-rounded upbringing, for their nourishment, and for their full growth, full development. तो ये सेम सेक्स जो कपल्स हैं ये इस चीज को ऑफर नहीं कर पाएंगे. ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज हैं वो अंडरमाइन हो जाएंगी. तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो अपने आप में इस समय चल रहे हैं, बिकॉज द केस इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. नो फाइनल जजमेंट हैज येट कम फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट regarding the legalization of the same sex marriage. Whether it will be go against the public opinion, it will go against the vast majority of the population. What will come from the Supreme Court, that will be the law for the nation. So we have to wait for that as to what is coming up.
However, the issue of same-sex marriage in India is considering it is very, very complex, and it involves various cultural, religious and legal perspectives. बहुत सारे issues हैं जो इसमें involve रहेंगे. And what decision is coming from the Supreme Court, that as a legal belonging to the legal discipline, we have to wait and we have to see कि क्या आता है. So as a responsible citizen of the country, you can think over in terms of the rights, in terms of the duties and the public interest till the court verdict comes, and whether these same-sex marriages, shall they or shouldn't they be allowed with these marriages to continue with and to go ahead. होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. As a responsible citizen, not in terms of the legality, but in terms of the other things which are related to the marriage, in terms of the societal needs, in terms of the traditional values, in terms of the equality rights. बहुत सारे aspects हैं, cultural, socio legal, political, economic also. We have to think in that respect whether they should be allowed to get married or they should not be allowed to get married, क्योंकि उससे बहुत सारे फिर further complications भी आएंगे, contract के regarding आएंगे, inheritance के regarding आएंगे. So these are various issues which one must think as a citizen. It's not confined to what is to be thought by the persons who are belonging to a legal discipline, but as a citizen of the country, this becomes the duty of every one of us, each one of us, to think in that whether by allowing them would bring the gender equality or by not allowing them would bring the gender equality, because gender and law is not confined to the women only, it is further extended to the third gender. It is also a case of the first gender. तो सभी के लिए है, ये सभी के लिए important है. और ऐसी स्थिति में ये देखना कि क्या उनको अलाउ किया जाए या उनको अलाउ नहीं किया जाए, we have to think over till the judgment comes. So with these words, I would end here myself, and if there are any questions, so you are most welcome for those questions.